ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲੈਕਚਰ ਰਿਪੀਟ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਛ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 3 ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 1 ਲਾਜ਼ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਫਸਟ ਲਾ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ। ਫਸਟ ਲਾ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨਿਊਟਨ ਫਸਟ ਲਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇਨਰਸ਼ੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਬਾਰੇ ਉਹਦੇ ਟਾਈਪਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦੱਸਣੀ ਕੱਲ੍ਹ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਮੇਜਰ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ। measure of inertia। The inertia ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ it is the internal property of a body due to which it resists in the change of its state। ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਦਾ ਇਹ ਰਜਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਪੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਪ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਜਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਮਾਸ। ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਜ਼ ਮੇਜਰਡ ਵਿਦ ਮਾਸ। ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ ਦਾ ਮਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਫੁੱਟਬਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਿੱਕ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੋਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੋਮੈਂਟਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਜੇਕਰ ਸੋਚੋ ਉਸੇ ਹੀ ਆਕਾਰ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਸੀ ਉਸੇ ਹੀ ਆਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੱਕ ਮਾਰੋ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਉਨੀ ਦੂਰ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ? ਰੈਦਰ ਉਨੀ ਦੂਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਟ ਵੱਜੂਗੀ। ਕਾਰਨ ਸਾਈਜ਼ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਸ ਦਾ। ਮਾਸ ਸਟੋਨ ਦਾ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਅੱਗੋਂ ਆ ਰਿਹਾ 10 ਦੀ ਸਪੀਡ 'ਤੇ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਲਾਂਗੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ। ਪਰ 10 ਦੀ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਕਹੀਂ ਵੀ 2 ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਰੋਕ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਾਰਨ ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਰੈਸਟ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੂਗਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਵੱਧ ਹੋਊਗਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੌਪਿਕ ਉਹ ਹੈਗਾ ਨਿਊਟਨਸ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ। ਤਿੰਨੇ ਲਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਨਿਊਟਨ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? the rate of change of momentum, the rate of change of momentum of a body is directly proportional to force applied and change takes place in the direction of force। ਕੀ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ? ਮੋਮੈਂਟਮ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ, the multiplication ਜਾਂ product of the mass and velocity। ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ ਦਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਕਿੰਨਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਾਸ ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਮਾਸ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹਦਾ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ। ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਵਧਾ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ? ਫੋਰਸ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਮੋਮੈਂਟਮ ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਫੋਰਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਫੋਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਵੱਧ ਫੋਰਸ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੱਧ ਮੋਮੈਂਟਮ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਘੱਟ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ। ਦੂਜੀ, change takes place in the direction of force applied। ਕਿਸੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫੋਰਸ ਲਾਈ ਹੈ, ਮੋਮੈਂਟਮ ਉਸੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ 10 ਦੀ ਸਪੀਡ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਪਿੱਛੋਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ?
जिस डायरैक्शन 'ਚ जा रहा सी मैं उस डायरैक्शन 'ਚ धक्का दिता है तो फोर्स उसकी वेलोसिटी नूं वधा लू। ठीक है, तो मोमेंटम किधर नूं चेंज होया जिधर नूं फोर्स लगी उस डायरैक्शन 'ਚ। हुण इहदा उल्ट करो, साइकिल वाला आ रहा है ਜਾਂ इधर नूं जा रहा सी मैं उन्होंने पुल कर लिया, खिंच लिया अपने वाल पिछों फोर्स लगा के, तो हुण भी उसका मोमेंटम चेंज हो क्योंकि वेलोसिटी चेंज होगी, घट गई। किधर नूं मोमेंटम चेंज होया जिधर नूं फोर्स लगी है, मतलब मोमेंटम के चेंज होने की डायरैक्शन वही होगी जिस डायरैक्शन 'ਚ फोर्स लग रही है। ठीक है, हुण इहदा एक छोटा जिहा मैथमेटिकल एक्सप्रैशन है वो आपां देख रहे हैं की कहा आपां ने, चेंज इन मोमेंटम डायरैक्टली प्रपोर्शनल टू फोर्स। तो फोर्स में आप लिख लेंगे एफ अखर नाल, डायरैक्टली प्रपोर्शनल का निशान तुहानूं पहलां दस्सिया आ हुंदा है। चेंज चेंज की होंदा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ की होंदा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब कितना मोमेंटम चेंज होया बटा किन्ने समय दे विच, मोमेंटम कितना बदलिया ते किन्ने समय च। ठीक है, हुण इत्थे एक शब्द ला देना है, तुहानूं याद होगा पिछले आपां यूनिट नंबर 2 भी कीता सी, इफ डेल्टा टी अप्रोचिज टू 0, इसका मतलब कि डेल्टा टी अप्रोचिज टू 0 मतलब कि जिहड़ा चेंज है बहुत थोड़े समय च आया है, तो इहनूं आपां किवें लिख सकते हैं, वेरी स्मॉल चेंज, वेरी स्मॉल चेंज आप लिखना डीपी मतलब वेरी स्मॉल चेंज बटा वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम। फिर आ निशान तुहानूं दस्सिया सी मेरे डायरैक्टली प्रपोर्शनल का हटाना हुंदा, आपां ने हटा के बराबर लगाना होंदा ते नाल एक लगा देना आपां कांस्टेंट, तो डीपी बटा डीटी एज इट इज। हुण पी का फार्मूला आपां कल पढ़िया सी कि पी काहदे बराबर हुंदा है एमवी, तो ये फार्मूला इत्थे पुट कर दो, फिर फोर्स भी वैक्टर क्वांटिटी हुंदी है। ठीक है, तो के डी पी की थां ते की भरता एमवी, इहनूं बोलते हैं डिफरेंशिएशन कादा पी का। डिफरेंशिएशन उस चीज़ का होगा जो अखर वेरी कर रहा है, बदल रहा है, तो इत्थे मोमेंटम चेंज हो रहा सी, मास एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, मास नहीं बदलता होगा, तो मास बाहर आ गया, रह गया डी वी बटा डी टी। हुण याद करो चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 2 उत्थे आपां करिया सीगा कि डी वी बटा डी टी की हुंदा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टाइम नूं आपां की बोलदे हां, एक्सेलरेशन ए। तो साडे कोल की रिजल्ट आ गया, एफ इज इक्वल टू के एम ए। जिहड़ी के दी वैल्यू है, वैल्यू ऑफ के है जो 4 SI सिस्टम वो आपां की मानते हैं इज इक्वल टू 1। तो साडे कोल की रिजल्ट आ गया एफ इज इक्वल टू एम ए। इनू याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत थावां ते बार बार यूज होगा, एफ इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, किवें कीता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, फोर्स डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज ऑफ मोमेंटम बटा चेंज इन टाइम। स्मॉल टाइम इंटरवल वास्ते बहुत थोड़े समय चेंज हो रही है, तो डेल्टा की थां ते की शब्द वरत लिया, डी वरत लिया अपने, इसको हटा के बराबर नाले कोई कांस्टेंट लग गया। पी की वैल्यू एम वी होंगी है, वो मैं भरती है, एम बाहर आ गया डिफरेंशिएशन चो क्योंकि कांस्टेंट क्वांटिटी है। डी वी बटा डी की होंदा है, डी टी वो एक्सेलरेशन होंदा है। के की वैल्यू एसआई सिस्टम वास्ते वो एक होंगी है, तो एफ इज इक्वल टू एम ए साडे कोल जिहड़ा हैगा वो रिजल्ट आ गया। तो ये सानू फार्मूला की दस है, ये फार्मूला सानू फोर्स दस रहा है, ये फार्मूला सानू फोर्स मैयर करने का काम आऊगा कि जेकर मैनू किसी बॉडी का मास पता है तो किन्ने एक्सेलरेशन के नाल चल रहा है ये पता है, तो फोर्स की हो जूगी, फोर्स की वैल्यू असीं की कर लांगे, फाइंड कर लांगे। तो इस करके ये बहुत इंपॉर्टेंट जिहड़ा हैगा वो लॉ ऑफ मोशन है। तो इस तो बाद साडे कोल जिहड़ा हैगा जी फोर्स दी जिहड़ी हैगी यूनिट बारे गल भी करांगे। तो इत्थे तो फोर्स जिहड़ी वैक्टर क्वांटिटी है भी पता लगता है क्योंकि एक एक्सेलरेशन वैक्टर क्वांटिटी है अपने कोल। दूजा इत्थों आप फोर्स की डेफिनेशन भी दे सकते हैं किवें कि फोर्स कैन बी कैलकुलेटेड या फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। फोर्स जिहड़ी हैगी है बॉडी के मास ते एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के बराबर है।
ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, m ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, m ਮਾਸ, ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦਾ याद करो की सीगा, लेंथ t - 2, ठीक है। ए दा डायमेंशनल फार्मूला है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो बन गया mLt - 2, ठीक है। यूनिट की बन गई वो आप कटते हैं, वैसे फार्मूला जो अपने को आया फोर्स का वैसे फार्मूला mLt - 2, इतों यूनिट की बन गई m4 किलोग्राम, L4 लेंथ मीटर सैकेंड इनवर्स, पर इसनों आप न्यूटन बोल दें, एडी जी ऐसे यूनिट आप न्यूटन बोल दें, क्यों, इन द ऑनर ऑफ द साइंटिस्ट जोड़े साडे बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए हैं सर आइजैक न्यूटन, उन्होंने ऑनर के विच आपने फोर्स की जी यूनिट है उसका नाम की रखा, न्यूटन रखा। तो दो तरह की यूनिट्स होंगे रहियां, 2 टाइप्स ऑफ यूनिट फोर्स दी, एक है एब्सोलूट यूनिट, दूजी है साडे कोले ग्रेविटेशनल यूनिट। पहला गल करते हैं आप एब्सोलूट यूनिट की, एब्सोलूट यूनिट साडे कोल जिहड़ी हैगी है न्यूटन, तो इनू एन नाल लिखते हैं, ठीक है, एन नाल लिखा जाता है, तो काहदे बराबर होगी 1 न्यूटन काहदे बराबर है, इथों मास इंटू एक्सेलरेशन होंगे ना, तो 1 न्यूटन कदों हो, जो ए भी 1 हो, SI सिस्टम पढ़िया हुआ अपने, एक्सेलरेशन कितना हो गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 1 न्यूटन कदों बोलांगे आप फोर्स नूं, व्हेन ए बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम is moving with the acceleration of 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कि जो एक बॉडी जिहदा मास 1 किलोग्राम है वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन नाल मूव कर रही है, तो जिहड़ा फोर्स लगाऊगी या फोर्स पैदा करूगी दैट इज कॉल्ड 1 न्यूटन। 1 न्यूटन फोर्स इज दैट मच फोर्स विच प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, मतलब वो फोर्स की उन्नी मात्रा दैट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन ए बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम, कि वो उन्नी फोर्स जिहड़ी 1 किलोग्राम की बॉडी दे विच 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन पैदा करने वास्ते चाहिए है या कर दे, उसनूं आपां की बोलांगे 1 न्यूटन बोलांगे। ये होगी SI। फिर है अपने को CGS, उन्होंने बोलते हैं डायन। तो 1 डायन कदों हो, CGS मास की यूनिट होती है ग्राम, तो एक्सेलरेशन होगा सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो की बोलांगे दैट मच फोर्स की वो मात्रा दैट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर इन ए बॉडी हैविंग मास 1 ग्राम, कि वो फोर्स जो 1 ग्राम की मास वाली बॉडी दे विच 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन पैदा करने वास्ते चाहिए या पैदा कर दे, उसनूं बोलते हैं आप 1 डायन। तो डायन ते न्यूटन का रिलेशन तुम्हें याद होना चाहिए, अपने डायमेंशनल एनालिसिस वाले पढ़िया सीगा 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 5 डायन, ये अपने को न्यूमेरिकल आप कीता सी, ये आपस में दी रिलेशन है, ठीक है। सैकेंड जी अपने को यूनिट हैगी वो हैगी अपने को ग्रेविटेशनल, नाम तो ही पता लग रहा है कि ये आप ग्रैविटी को नाल लेके चलांगे, कि जो आप फोर्स को मल्टीप्लाई कर दिए ग्रैविटी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रैविटी, धरती की खिच जिहदे करके धरती की खिच नहीं कहांगे आप, वो ग्रैविटेशनल फोर्स होंदी है कि धरती की खिच कारण किसी बॉडी जो एक्सेलरेशन पैदा होता है, जिवें आ मेरे को हथ 'च मार्कर है, जो मैं छड्डदा तो धरती की खिच नाल ही नीचे जा रहा है, तो जो नीचे जा रहा है
ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਮੋਸ਼ਨ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਉੱਪਰੋਂ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ ਇਹਦੀ ਸਪੀਡ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੈਗਾ 9.8 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਕੁਅਰ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 9.8 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਕੁਅਰ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਫੋਰਸ, ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ weight, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਐਸਆਈ ਸਿਸਟਮ 'ਚ 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ weight ਜਾਂ 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਫੋਰਸ। ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ? ਇਹ ਹੈਗਾ 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ into 9.8 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਕੁਅਰ। ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ weight ਜਾਂ 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਫੋਰਸ। ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਦੇਵਾਂਗੇ? is a that much force that produce acceleration of, ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੀਗਾ 1 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਕੁਅਰ, ਇੱਥੇ ਬੋਲਾਂਗੇ that produce acceleration of 9.8 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਕੁਅਰ in a body having mass 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ। ਕਿ ਉਹ ਫੋਰਸ ਜੋ ਕਿਸੇ 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਾਲੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਵਿੱਚ 9.8 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ weight ਜਾਂ 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਫੋਰਸ। CGS ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ? ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ weight ਜਾਂ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਫੋਰਸ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ? 1 ਗ੍ਰਾਮ, ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। 9.8 ਨੂੰ 1 ਮੀਟਰ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? 100। ਤਾਂ 100 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ 980। ठीक है। तो की डेफिनेशन, सब की डेफिनेशन लगभग सेम ही है। दैट मच फोर्स दैट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन ऑफ 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर इन ए बॉडी हैविंग मास 1 ग्राम। कि जो 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन पैदा कर दे एक बॉडी जिसका मास 1 ग्राम होवे, उन्नी फोर्स को की बोलते हैं 1 ग्राम फोर्स या 1 ग्राम वेट एक बोल देते हैं। तो ये चार ने जिहड़ियां यूनिट्स ने फोर्स दियां याद रखने ने, एक नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू तो इंपॉर्टेंट ने सारे। ठीक है। उस तो बाद साढ़े को अगला इहदा नाल जुड़ा टॉपिक है कॉन्सीक्वेंसिस ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। कॉन्सीक्वेंसिस की ने की सानू इस असीं नतीजे कढ़ सकते हैं जां सानू किहड़ी गल्लां दा बारे जानकारी सानू मिलदी है। तो पहला हैगा नो फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव ए बॉडी uniformly along straight line। कि एक बॉडी नूं जेकर स्ट्रेट लाइन दे विच यूनीफॉर्म मोशन कराना होवे तां कोई फोर्स नहीं चाहिए। मतलब एक बॉडी यूनीफॉर्म मोशन कर रही है, वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इक्वल टाइम दे विच, तां सानूं कोई फोर्स नहीं चाहिए। हुण ये किवें हो सकदा है? मैं तुहानूं कह दस्सिया कि बिना फोर्स का मोशन हो नहीं सकता। किवें है देखो, F इज इक्वल टू ma। हुणे आपां ने फार्मूला कढिया। यूनीफॉर्म मोशन किहनूं कहने आपां? कि बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल टाइम दे विच। तां चलो पेपर दे विच भी यूनीफॉर्म मोशन का ग्राफ आया सीगा। दो तरह के ग्राफ बनते हैं, आपां ने किते ने आपां ने डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाइए इनू आपां इस तरह बनूगा। ठीक है। जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाइए तो इस तरह बनूगा। मतलब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है ਜਾਂ स्पीड स्ट्रेट लाइन वेलोसिटी स्पीड इको चीज़ होंगी है। वेलोसिटी या स्पीड कांस्टेंट है, बदल नहीं रही। कांस्टेंट मतलब बदल नहीं रही, जीरो नहीं, बदल नहीं रही। एक्सेलरेशन की होंदा है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी के बदलन की दर, पर वेलोसिटी तो बदल नहीं रही, तो इस केस एक्सेलरेशन की हो जाता है जीरो जो वेलोसिटी चेंज ना हो। तो m गुणा जीरो दैट इज जीरो। ही कहने आप कि नो फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव ए बॉडी अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन यूनीफॉर्मली। ठीक है। सैकेंड सानू तो की पता लगता है एक्सेलरेशन, ये शॉर्ट फॉर्म च है द एक्सेलरेटेड motion is always
always due to force। ऊपर की कहा सीगा कि यूनीफॉर्म मोशन च फोर्स की लोड़ नहीं, पर जे एक्सेलरेटेड मोशन कराना है, जे एक्सेलरेशन चाहिए है कि मोशन च ए हैगा तो फोर्स होगी ही होगी, क्योंकि फोर्स का बराबर है एम इंटू ए। ठीक है, एम जो है वो कदे जीरो नहीं हो सकता, एम कदे किसी बॉडी का जीरो नहीं हो सकता। एम जीरो होने का मतलब की हो गया कि बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती, मास उसे बॉडी का जीरो हो सकता है जो बॉडी ना हो। ठीक है, तो एम तो कदे जीरो हो नहीं सकता, ए हैगा क्योंकि आप है एक्सेलरेटेड मोशन, ए की वैल्यू हैगी है, तो यदा मतलब एफ की भी कोई ना कोई वैल्यू जरूर होगी। मतलब सानू जे ए की वैल्यू चाहिए है तो एफ भी होगा ही होगा। सो एक्सेलरेटेड मोशन जो हैगा वो वास्ते ऑलवेज सानू की चाहिए है, फोर्स चाहिए है। थर्ड, मेजरमेंट ऑफ फोर्स। तो हमने आप किया कि एफ इज इक्वल टू एम ए, न्यूटन का सैकेंड का सानू की दे रहे हैं मेजरमेंट ऑफ फोर्स। ए नहीं पता, वेलोसिटी पता है तो भी कर सकते हैं, कितने टाइम की वेलोसिटी चेंज हुई है आप इतों फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, होर दी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन की है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज अ वेक्टर लॉ। सेकंड लॉ इज अ वेक्टर लॉ। ਅਸੀਂ वेलोसिटी ਨੂੰ ਜਾਂ एक्सेलरेशन ਨੂੰ ਵੈਕਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੈਲਿਊ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਬੋਡੀ 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਐਕਸ ਵਾਈ ਜ਼ੈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ ਉਹ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਹਾਈਟ ਵੀ ਹੈ। ठीक है, वो साइडों से भी मुड़ता है, वो उपर नीचे भी होंगे, अगे भी जाता है, तो वो एक्स वाई जैड लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तिने मोशन च है। तो जिस हिसाब से चेंज हो रहे तो वो अलग अलग वैल्यू होगी। एक्सेलरेशन की अलॉन्ग एक्स एक्सिस अलग होगी, वाई एक्सिस भी कुछ होर होगी, तो जैड एक्सिस जो होर होगी। तो वो अकॉर्डिंग असी फोर्स दियाँ भी अलग अलग वैल्यूज ने जिहड़ियां वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इस करके हम बोलते हैं कि यह वैक्टर लॉ ऑफ मोशन है। फिफ्थ पॉइंट हैगा फोर्स जिहड़ी हैगी है सिंगल जिहड़ा है सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ इज एप्लीकेबल टू सिंगल पार्टिकल। यह सिंगल पार्टिकल से एप्लीकेबल है, मतलब कि जी आप कहते फोर्स लग रही है किसी बॉडी से, एक्चुअल च बॉडी की गल नहीं करता सैकेंड लॉ, ये गल करता है एक पॉइंट की भी, एक पॉइंट से फोर्स लग रही है, तो जो एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है वो भी उस पॉइंट का हो रहा है। सैकेंड लॉ जो फोर्स एप्लीकेशन की गल करता है कि किसी बॉडी की रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। एक जिस जगह से लग रहा है पॉइंट, ये उस पॉइंट की गल करता है कि फोर्स एक पॉइंट से लग रही है, वो जो मोमेंटम चेंज हो रहा है इस पॉइंट का हो रहा है, जो एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है वो सिर्फ उस पॉइंट का हो रहा है। हाँ, पर इसनों आप पॉइंट सिस्टम तो मल्टी पॉइंट सिस्टम बॉडी जिन्होंने कहते हैं रिजिड बॉडी, मैं मार्कर है ब्लैक बोर्ड रिजिड बॉडी है, जो फाइनाइट साइज है, बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स तो छोटे छोटे पार्टिकल्स तो, ठीक है, फिर मैं पॉइंट शब्द बोलते पार्टिकल में कहना जी कि फोर्स लग रही है एक पार्टिकल से, ठीक है, तो एक्सेलरेशन भी की पैदा हो रहा है एक पार्टिकल के पैदा हो रहा है। तो जिमें ये बॉडी हैगी है, ये बहुत सारे पार्टिकल्स तो मिलकर बनी हुई है, आप इस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। पर उससे फर्क की पै जूगा, ये जी फोर्स होगी है टोटल एक्सटर्नल फोर्स बोलेंगे टोटल एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि जो बहुत सारे पार्टिकल आपस में जुड़े होंगे ने, ये अंदर भी एक फोर्स होंगी है इंटरनल फोर्स, जिहदे आपस के जुड़े हुए हैं, तो वो अपने वो फोर्स काउंट नहीं करनी। असी कि फोर्स की गल करांगे सिर्फ जो बाहरों लग रही है इनू मूव कराने वास्ते। तो जो ये एक्सेलरेशन बोलांगे इनू बोलांगे एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये टॉपिक अपने को यूनिट नंबर 6 आऊगा 5 सॉरी सेंटर ऑफ मास, ठीक है,
CM फॉर सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास की होंगे वो उत्थे गल करांगे, बस इतने गल समझने की गल है भी इसमें रिजिड बॉडी से भी अप्लाई कर सकते हैं, पर उत्थे फिर फोर्स कली नहीं बोलांगे टोटल एक्सटर्नल फोर्स बोलांगे, इंटरनल विच नहीं काउंट करनी। तो एक्सेलरेशन एक पार्टिकल का नहीं होगा, वो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का होगा। अगला जो पार्ट मैं तो पता लगा कॉन्सिक्वेंस हैगा हाँ जी। अगला पॉइंट हैगा F इज इक्वल टू MA इज ए लोकल रिलेशन। ये समझने वाली गल है लोकल रिलेशन। ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब है? ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ है ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਰਸ ਲੱਗੀ, ठीक है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੇ ਫੋਰਸ ਲੱਗੀ, ਪਾਰਟੀਕਲ 'ਚ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗਣ ਕੇ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਤਤਕਾਲੀਨ है। तत्कालीन मतलब कि ये जो एक्सेलरेशन पैदा होया वो सिर्फ इस फोर्स करके पैदा होया। ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब सिर्फ इस फोर्स करके, मतलब कि जेकर तो बॉडी रेस्ट सी तो फोर्स लगी हुई पहली यही है, पर जो मान लो कोई यहाँ कोई ऑब्जेक्ट पहला ही मोशन च है तो मोशन च आंदे आंदे एक फोर्स में होर लगा दी तो पहला तो ही ट्रैवल कर रहा है, ट्रैवल हिस्ट्री च है पहला तो ही, इट हैज ट्रैवल मैमोरी, ਇਹਦਾ कुछ ना कुछ पहला भी एक्सेलरेशन हैगा, ठीक है। पर जो आ फोर्स लगी F ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਪਿਛਲੀ ਜੋ ਫੋਰਸ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਲੋਕਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੋਰਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਬੋਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਸ ਪਿਛਲੇ ਟਰੈਵਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਫੋਰਸ ਜੋ ਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਫੋਰਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ये एक्स्ट्रा पैदा होया, पहला वाला जो सी वो है वो अलग तो है। हाँ जी, उस तो लास्ट हैगा कंसेप्ट ऑफ इनर्शियल मास। कंसेप्ट ऑफ इनर्शियल मास ये वैसे आप गल पहले कर चुके कि F इज इक्वल टू MA, A इज इक्वल टू F बटा M। ਇਹ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਵੀਂ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੌਵੀਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਾ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸੇਬ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸੇਬ ਹੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਸੇਬ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ? ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਨਸਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੇਬ ਦਾ ਮਾਸ ਖਿੱਚਦਾ ਸੇਬ ਵੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਉਨੀ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਸੇਬ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਲਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਬਰਾਬਰ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੀ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਸੇਬ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦਾ ਉਨੀ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਹੀ ਧਰਤੀ ਸੇਬ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਸੇਬ ਕਿਉਂ ਗਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਕਿ ਸੇਬ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਧਰਤੀ ਸੇਬ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂ ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੋਡੀ 'ਚ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੇਬ 'ਚ, ਤਾਂ ਸੇਬ ਦੇ ਮਾਸ ਦੇ ਆ ਫੋਰਸ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਸੇਮ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਵੀ ਉਨੀ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ ਸੇਬ ਨੂੰ, ਸੇਬ ਵੀ ਉਨੀ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੇਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਮੰਨ ਲਓ 100 ਹੈ, ਸੇਬ ਦਾ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਮੰਨ ਲਓ 1 ਹੈ, ਤਾਂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ? 100। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੇਬ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ, ਐਪਲ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ, ਅਰਥ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਫੋਰਸ ਤਾਂ 100 ਹੈ, ਪਰ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਲੱਖ ਲਾ ਲਓ, ਸੇਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੱਖ ਗੁਣਾ ਦਾ, ਲੱਖ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ 2 ਜ਼ੀਰੋ ਨਾਲ 2 ਜ਼ੀਰੋ ਕੱਟ ਗਈਆਂ, 1/1000, ਇਹ ਰਹਿ ਗਿਆ 0.001। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ 100, ਇਹ 'ਚ ਹੋਇਆ 0.001। ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹੀ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ, ਜਿਹਦਾ ਬੋਡੀ ਦਾ ਮਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ ਸੇਮ ਫੋਰਸ ਨਾਲ, ਜੇ ਮਾਸ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਰਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ
इसे जो मास है बोलांगे आप ये सानू किस चीज़ दस रहे इनर्शिया का कंसैप्ट दस रहे नाल मेजर ऑफ इनर्शिया दस रहा। तो इस करके थोड़ा मास ਅਸੀਂ फाइंड करते हैं उन्होंने बोलांगे इनर्शियल मास। ठीक है जी। तो ये साढ़े को 7 कॉन्सीक्वेंसिस सी ये कॉन्सीक्वेंसिस ने ना ये जो पहला पॉइंट कराया हमने वो तो एक क्वेश्चन बनता है डायरैक्ट क्वेश्चन बनता है कि प्रूव दैट नो फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर यूनीफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन। उस तो इलावा जोड़े भी अपने पॉइंट पढ़े ने दैट आर फॉर अंडरस्टैंडिंग ये कंसैप्ट बनाने वास्ते ने इन्हों तो डायरैक्ट क्वेश्चन जोड़ा वो नहीं बनाया बनता है कोई भी। अगला जो साढ़े को अज का टॉपिक है वो है इंपल्स। इंपल्स एक ही चीज होती है इसकी डेफिनेशन है इंपल्स ऑफ ए फोर्स is a measure of total effect of force। total effect of force की मतलब है impulse of a force is a measure of total effect of force। ਤਾਂ ਜਦੋਂ फोर्स लग रही है किसी बॉडी ते फोर्स लगन नाल की इंपैक्ट पिया या की इंपैक्ट उन्हें पैदा किया जिस बॉडी ते फोर्स लगी। ठीक है तो उसको की बोलते हैं इंपल्स मतलब फोर्स का प्रभाव दसदा है। जब आप कहते हैं व्हेन ए फोर्स इज एक्टिंग फॉर वेरी शॉर्ट टाइम ऑन ए बॉडी दैट इज कॉल्ड इंपल्स। मेजर किवें करते हैं फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी फॉर वेरी स्मॉल टाइम दैट इज कॉल्ड इंपल्स। ठीक है तो ये इंपल्स दसदा की है सानू इफैक्ट ऑफ फोर्स दसदा है कि फोर्स लगने नाल की इफैक्ट पिया। तो ये फार्मूला असीं की लिखते हैं इंपल्स इज इक्वल टू एवरेज फोर्स इनटू टाइम। हुण इत्थे शब्द की वरते हैं एवरेज फोर्स। हुण इहनूं समझण वास्ते तुसीं समझ सकते हो कि जदों आपां एक क्रिकेट बैट नाल बॉल नूं हिट करते हैं तो किन्ने क समय वास्ते जी बॉल है वो टच करती है या किन्ने समय वास्ते जो बैट आ बॉल में टच करता है। ठीक है तो फोर्स जी लाई बैट ने बॉल के उपर वह की इफैक्ट पिया बॉल दैट इज कॉल्ड इंपल्स। जब बॉल जो टकराई बैट नाल तो बॉल का की इफैक्ट पिया बैट के उपर दैट इज कॉल्ड इंपल्स। वो की इफैक्ट पैदा किया तेनों मेजर करना सीखा एवरेज फोर्स इन टू टाइम। हूँ एवरेज क्यों शब्द वरते हैं क्योंकि फोर्स कॉन्सटेंट क्वांटिटी नहीं हैगी भी हमेशा किसी बॉडी के उपर कॉन्सटेंट फोर्स लगूगी। इक्को जिनी फोर्स लानी शुरू करती है इक्को हरेक उन्ने समय फोर्स की मात्रा उन्नी लगूगी ना। जो सोच के देखो जो बैट में बॉल टच करती है या बैट बॉल में हिट करता है तो पहला थोड़ा कंटैक्ट होंगे फिर कंटैक्ट बढ़ता है। ठीक है फोर्स ज़्यादा लगती है फिर वो दूर हो जाता हौली हौली दूर होंगी है होंगे तो बहुत थोड़े समय चाहे पर पूरे कोर्स के जो बॉल बैट में टच करती है तो छड़ती है तो पूरे कोर्स के समय फोर्स कॉन्सटेंट नहीं होती। वो वैल्यू किसी समय से बहुत ज़्यादा होती है किसी समय से बहुत घट होती है। तो इस करके कंसैप्ट बनता है एवरेज फोर्स का ना कि कली फोर्स का। ठीक है एवरेज मतलब जो चेंज हो रहा है सारे का। तो एफ जो है आपको पता है एफ इज इक्वल टू डी पी बटा डी टी ये आप हमने किया न्यूटन के सैकेंड ला दो जिन्होंने आप इधर गुणा कर दिया की बनूगा ये एफ डी टी इज इक्वल टू डी बी। हूँ इन्हू इंटीग्रेट कर दो इंटीग्रेट बोथ साइड। हूँ इंटीग्रेट की होंगे एक मैथ का फार्मूला है मैथ का एक तरीका है जिमें तुम समेशन करते थे छोटे क्लासा आ शब्द वरतो समेशन। यदा मतलब की होंगे कि छोटे छोटे हिस्सों का जोड़ इंटीग्रेशन भी एक तरह का जोड़ है पर बहुत छोटे हिस्सों का जोड़े लगातार कंटीन्यूस हिस्से ने उन्होंने जोड़ ये मैथ के आऊगा +2 सब इंटीग्रेशन। फिजिक्स के थोड़ी लोड़ पैंती है ज़्यादा नहीं पर पता होना चाहिए की होंगे किमें काम करता है। तो यह निशान होंगे आ वाला इस तरह इंटीग्रेशन मतलब स्मॉल चीज़ तो ज़्यादा पता करनी हो जो तो उदों आप यही शब्द वरतते हैं छोटे रिजल्ट तो बड़ा रिजल्ट कढ़ना हो तो इंटीग्रेशन करांगे टी इधरले पासे 0 जो नहीं लग रही सी फोर्स तो लेके जिन्ना जो तक लगी
ਇੱਥੇ P1 ਤੋਂ P2 ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਲਿਮਟ ਉਹਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਇੱਥੇ ਐਵਰੇਜ ਫੋਰਸ ਵਰਤੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਐਵਰੇਜ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਮਤਲਬ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੋਗੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਐਵਰੇਜ ਤਾਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਲਿਮਟ ਕੱਢ ਲਈ ਹੈ T ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ D ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, D ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਲਿਮਟ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ D ਕੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ dt dp P1 P2। ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ d ਤੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਲਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਲਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੱਟਣਾ। dt ਦਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਣਦਾ t, dt ਦਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਛੋਟੇ ਭਾਗ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਭਾਗ। ਫਿਰ ਲਿਮਿਟਸ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਕੁਅਰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਲਿਖਣ ਦਾ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੋਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਸਕੁਅਰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਤੇ ਲਿਮਿਟ ਚਲੀ ਗਈ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ, ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ। dp ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ p, लिमिट चली गई पिछले पासे। f लिमिट भरो, t की थां ते t पहला उपर वाला, फिर t की थां ते 0, लिमिट भरो p की थां ते p2, p की थां ते फिर माइनस पा के विचाले p1 p2 p1। ठीक है, समझ लग गया ना। लिमिट उपरली इस अखर की थां ते आ अखर भरना है जिहड़ा भी लिखा है। ये तो बाई चांस भी सेम ने, कई बार ये सेम नहीं भी होंगे। ठीक है ना। तो टी की थां ते टी आ गया, फिर माइनस, फिर निचली लिमिट पी की थां ते P2 माइनस, फिर निचली लिमिट। तो ये साडे कोल की आ गया, देखो ध्यान नाल देखो की बन गया। ये हैगा एफ एवरेज गुणा टी बराबर है P2 माइनस P1 बराबर है चेंज इन मोमेंटम। ये की है आ, मतलब एक फार्मूला है। तो इंपल्स जेकर पता करना तो किवें पता कर सकते हैं आप, चेंज इन मोमेंटम तो भी पता कर सकते हैं कि बॉडी का मोमेंटम कितना चेंज होया। जे ज़्यादा चेंज होया तो इंपल्स ज़्यादा है, जे घट चेंज होया तो इंपल्स घट। ठीक है, तो ये फार्मूला बन गया अपने को। इसकी वरतों बहुत ये उपर बहुत सारे क्वेश्चन ने आधारित जो आप करने हैं। इंपल्स इज इक्वल टू एफ एवरेज गुणा टी बराबर है चेंज इन मोमेंटम। उम्मीद है समझ आ गया। मैं दोबारा फिर दस रहा, एफ इज इक्वल टू डी पी बटा डी टी न्यूटन का दूसरा नियम है। डी टी ने इधर गुणा करती। ठीक है, ये एफ उरे एवरेज है, मैं पाया नहीं है, लास्ट पाता। फिर इंटीग्रेशन करता, इंटीग्रेशन का निशान आ वाला है, 0 तो टी इंटीग्रेशन करना, P1 तो P1 तो P2। इंटीग्रेशन किहदी होगी, लिमिट किहदी लगूगी, जिहदे नाल डी लग्या होवे ओहदी लगूगी। तरीका की है ना, कांस्टेंट अक्षर बाहर आ जाता हुंदा है। dt का इंटीग्रेशन d कैंसिल हो जाऊगा, ये हट जाऊगा, t बच गया, यदा d हट गया, p बच गया। आ निशान बदल गया स्केयर ब्रैकेट दे विच। लिमिट चली जाती है पिछले पासे। लिमिट किवें भरनी है, बाहरला अखर उमी है, पहला उपरली लिमिट उपरला अखर भरता, माइनस पा के निचला अखर भरता, पहला उपरला भरता, माइनस पा के निचला भरता। तो एक आला बन गया फार्मूला एफ एवरेज इनटू टी। ये इंपल्स होंदा है, बराबर क्या जाएगा P2 माइनस P1, मतलब P2 बाद वाला है मोमेंटम, पहला वाला मोमेंटम। जब कहने कितना तो कितना बड़ा हो गया पिछले साल के मुकाबले, किवें कढांगे, पहला पिछले साल कितना कद सी, इस साल कितना हो गया। ठीक है, बाद वाले चो पहला वाला घटाता तो की आ गया चेंज, कितना बदलाव आ गया, कितना बदल गया। तो इंपल्स इज इक्वल टू एफ एवरेज गुणा टाइम जां चेंज इन मोमेंटम। हुण इहदे उपर इस तो पहला एक तो है वैक्टर क्वांटिटी, क्योंकि मोमेंटम वैक्टर क्वांटिटी है तो ये भी वैक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। फिर आ गया डायमेंशन फार्मूला। ठीक है, किवें कढोगे, चाहे तो मोमेंटम वाले चेंज इन मोमेंटम मतलब मोमेंटम ही आऊगा, चाहे इत्थों कट लो चाहे इत्थों कट लो, सेम ही आऊगा। की आऊगा mlt माइनस 2, एक आधा सीगा फोर्स का, गुणा t ml ओमी ओमी t माइनस 2, यह एक प्लस का, जे बेस सेम हो तो पावरां का जोड़ होंदा है। की बन गया mlt माइनस 1। यूनिट की बन गई न्यूटन, टाइम की है सैकेंड, न्यूटन सैकेंड। ठीक है, ये बन गई यूनिट साडे कोल, जो भी बना सकते हैं, जो मोमेंटम वाली सी किलोग्राम मीटर पर सैकेंड। उस तो बाद ये ग्राफ से ड्रा कर दिए।
एक पासे टी एक पासे फोर्स। हुण जेकर साडे कोले F1 गुणा T1 F2 गुणा T, ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब है? ਇਹਦਾ ग्राफ ड्रा कर रहा मैं कि एक T1 टाइम ते फोर्स F1 लग रही है, एक T2 टाइम ते फोर्स F2 लग रही है। हुण एक आधा फार्मूला है इंपल्स का फार्मूला है, ये की शो कर रहे हैं कि ਵੱਧ फोर्स घट समय ਲਈ लगी, एक घट फोर्स ਵੱਧ समय ਲਈ लगी। T2 घट है T1 घट है T2 ज़्यादा है, F2 घट है F1 ज़्यादा। F1 लगी T1 ਲਈ घट समय वास्ते, F2 लगी ਵੱਧ समय वास्ते, पर दोनों की गुणा की है सेम। मतलब कि जेकर इक्को जिन्ना इंपल्स दो तरीके नाल आपां पैदा कर सकते हैं बॉडी 'च, घट फोर्स ला दो ਵੱਧ समय वास्ते ਜਾਂ ਵੱਧ फोर्स ला दो घट समय वास्ते, तो दोनों तरीके नाल ही असीं सेम इंपल्स पैदा कर सकते हैं। ये तो हैगा जेकर फोर्स कॉन्सटेंट है, पर जे फोर्स कॉन्सटेंट ना लगे लग रही होवे तो आपां ने इंपल्स फाइंड करना होगा। तो टाइम नाल जिवें जिवें फोर्स बदल रही है उसका ग्राफ बना लो। तो एरिया अंडर द कर्व, इत्थे भी एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व सानू की दसूगा? इंपल्स दसूगा। मतलब असीं ग्राफ तो भी इंपल्स फाइंड कर सकते हैं। F ते T दे विचाले ग्राफ बना लेंगे आपां, जो भी उहदे नीचे दा एरिया होगा दैट विल गिव अस द वैल्यू ऑफ इंपल्स। ठीक है, उम्मीद करदा तुहानूं समझ आ गया होगा सारा। इस तो बाद साडे कोल लास्ट टॉपिक बच गया एप्लीकेशनस ऑफ इंपल्स। इहदियां की एप्लीकेशनस ने, कित्थे कित्थे सानू इहदी लोड़ पैंदी है वरतन दे असली सारी डेली लाइफ दे विच कित्थे कित्थे यूज हुंदी है चीज़ें। ठीक है, पहला आ गया वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लो। अ क्रिकेट प्लेयर lower his hands while catching a cricket ball। ਇਹ ਹੁਣ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪਤਾ ਹੈ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪਲੇਅਰ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੈਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੈਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਧਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕੈਚ ਐ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਐ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਚ ਦੇ ਨਾਲ 99% ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੈਚ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਕੈਚ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਫੜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀ। ਜੇ ਸਿੱਧਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੈਚ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਸਮਝੋ, ਜਦੋਂ ਕੈਚ ਸਿੱਧਾ ਫੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਂਦ ਬਹੁਤ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, गेंद बहुत स्पीड नाल आ रही है, इंपल्स काहदे बराबर है? F एवरेज गुणा T। ठीक है, काहदे बराबर है? चेंज इन मोमेंटम। हुण जदों कोई बॉडी आ रही है तेजी नाल उपरों, उसका मोमेंटम बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आ चीज़ नूं वरतां करिए आपां, इहनूं नहीं वरतांगे। हुण जदों कोई बॉडी आ रही है उसका मोमेंटम बहुत ज़्यादा है, वो फड़ ली तो वह मोमेंटम कितना हो जाएगा? 0। पहला मान लो मोमेंटम की है 100 है, हुण कितना हो गया? फड़ ली, रुक गई, वेलोसिटी मोमेंटम इसको मास इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी 0 होगी, फड़ ली 0 हो गया। तो एवरेज कितनी लगूगी? हुण टाइम कैच किन्ने के टाइम चलता? 100 माइनस 0 100 किन्ने के टाइम चलता कैच? रुकता है सकिंट के भी 10वें या 100वें हिस्से आप 10वां मान लें। 10वां मतलब 0.1, तो 100/0.1 1/10 ऊपर चला गया 1000 न्यूटन फोर्स लग गई। 1000 न्यूटन फोर्स बहुत होती है, बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा सट लगू जेकर इक्को दम फड़ ली। पर जे मैं लोअर करा हाथ इस तरह हौली हौली तो की होगा? गेंद नूं रुकण दे विच टाइम लगूगा, गेंद इत्थों रुकनी स्टार्ट होगी, मेरे हाथ नूं तो टच कर गई हो। ठीक है ना, ਉਹਦੀ वेलोसिटी घटनी शुरू होगी पर एकदम नहीं घटती। तो इत्थे जो मैं समा बढ़ाता, मान लो मैं करता 2 सकिंट, तो कितना बन जूगा
50 ਹੁਣ कित्थे 50 न्यूटन कित्थे 1000 न्यूटन तो ये फोर्स बहुत ज़्यादा है तो थोड़े हत्थों से बहुत ज़्यादा सट लगती तो सट के करके गेंद छुट जाती है पर जो लोअर करते हैं हथ तो गेंद छुटती नहीं हैगी कैच आसानी नाल फड़िया जाता तो आंसर की होगा वाइल कैचिंग अ क्रिकेट बॉल प्लेयर लोअर हिज हैंड अलॉन्ग द बॉल बाय डूइंग सो इस तरह करके की करता हो ही इनक्रीजिज द टाइम फॉर चेंज इन मोमेंटम उन्हें की करता मोमेंटम के चेंज होने का समा बढ़ाता ही इनक्रीजिज द टाइम फॉर कैचिंग द बॉल ठीक है जा चेंज इन द मोमेंटम एज ए रिजल्ट वो करके अ वेरी स्मॉल फोर्स एक्ट्स ऑन हिज हैंड्स बहुत घट फोर्स वो हथों से लगती है एंड ही इज नॉट गेट इंजर्ड वो सट नहीं लगती एंड कैचेज द बॉल वेरी ईजली ऑन द अदर हैंड इफ ही कैचेज द बॉल नॉट बाय लोअरिंग हिज हैंड then change in momentum takes place in very short time तो momentum का change होना बहुत ही घट समय होता है as a result very large force act on our hands या his hands on the player's hand बहुत ज़्यादा force उसके हथों से लगती है and his hand get injured and he is not able to catch the ball उसके हथों से सट लगती है कि वो बॉल को कैच नहीं कर पाता उम्मीद है तुमको समझ आ गया क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेकंड हैगा व्हाई अ पर्सन गेट हर्ट व्हेन फॉल ऑन पक्का फ्लोर rather than on कच्चा फ्लोर मतलब एक परसन जो पक्के फर्श से गिरता है तो सट लगती है जो कच्चे से गिरता है तो वो मुकाबले बहुत घट सट लगती है कारण सेम उपरला कारण जो आप पक्के फर्श से गिरांगे तो चेंज इन मोमेंटम विल टेक्स प्लेस इन वेरी स्मॉल टाइम बहुत घट समय के मोमेंटम जीरो हो जाएगा बहुत ज़्यादा तो इकोदम की हो गया जीरो हो गया दैन फोर्स विल एक्ट ऑन लार्ज या वेरी लार्ज फोर्स विल एक्ट ऑन आवर बॉडी तो साडी बॉडी के उस हिस्से से फोर्स ज़्यादा लगूगी एंड वी विल गेट हर्ट सीरियसली पर जो असीं कच्चे ते गिरांगे मिट्टी हुंदी है तो मिट्टी दब जाती है चेंज इन मोमेंटम टेक्स प्लेस इन कंपैरेटिवली लार्ज टाइम कंपैरेटिवली वो कंपैरिजन ज़्यादा समय लगता है सो लैस फोर्स एक्ट ऑन आवर बॉडी तो घट फोर्स लगती है तो वी विल लैस इंजर्ड ठीक है जी अगला क्वेश्चन चाइना वेयर्स और ग्लास वेयर्स आर पैक्ड इन स्ट्रॉ पीसीज और पेपर की मतलब है चाइना वेयर मतलब जो चाइना का समान आप कप प्लेटा वगैरह या कच का बना हुआ जो समान है वो पैक होंगे तूड़ी के स्ट्रॉ जिन्होंने आप कहने पराली या कागज गत्ता उस पैक होंगे क्यों क्योंकि जो वो गिरूगा समान जो ढोआ ढवाई होगी ट्रांसपोर्ट करांगे एक जगह तो दूसरी जगह समान ले जाया जाता है वैन इट विल फील जर्क झटका लगूगा then change of momentum will takes place झटका लग गया फोर्स लगी तो जो जर्क है उन्होंने उत्थे तक पहुँचने वास्ते जिमें कप है मान लो साढ़े को अगे आसे पासे की है पराली है जो झटका लग गया झटके आ पराली के विच दी या कागज के विच दी होके कप कोले जाऊ तो यह टाइम बढ़ा दू जो झटके का समय जर्क का समय इंपैक्ट का समा बढ़ा दू ठीक है तो जिदे नाल चेंज इन मोमेंटम की हो गया लार्ज समय हो गया ज़्यादा समय होगा तो ये को जो झटका पहुँचूगा जो फोर्स का झटके का इंपैक्ट पैना सी इफैक्ट पैना सी वो की पऊगा हुण घट पऊगा
क्योंकि इंपल्स बराबर है फोर्स इनटू टाइम, ठीक है ना। इंपल्स बराबर है फोर्स इनटू टाइम, दोनों चीज़ों की गुणा है। जे आ बढ़ गया उनमें 6 आंसर है, सिंपल जी गल करते हैं आप। मान लो 12 है, इंपल्स कितना लग रहा है 12, हम 12 किमें आ सकता है 6 गुणा 2 भी आ सकता है 12, 4 गुणा 3 भी आ सकता है, 3 गुणा 4 भी आ सकता है, तो 2 गुणा 6 भी। जो आ घट है तो आ ज़्यादा है, जो आह ज़्यादा हो गया तो घट गया। तो जो मैंने इंपैक्ट का जरक का समा बढ़ाता की पा के पेपर स्ट्रॉ या पेपर पाता या स्ट्रॉ पीस भी पाता, तो फोर्स की होगी, फोर्स का इंपैक्ट की हो जाऊगा घट जाऊगा, तो इट विल सेव फ्रॉम भी ब्रोकन आउट, टुटन तो की हो जाएंगे ये बच जाएंगे। इस तरीके अपने गड्डियां कारां दे विच शॉकर लगे होंगे, मैं अगले क्वेश्चन लिख नहीं रहा, सिर्फ समझा रहा, जिहड़े गड्डियां कारां स्कूटर ने शॉकर ने कुछ लगे हुए, उन्होंने काम की है, क्यों लगे ने, वह काम भी यही है। शॉकर्स प्रोवाइड लार्ज टाइम फॉर द जर्क, एज ए रिजल्ट इंपैक्ट ऑफ द जर्क की हो जाता है रिड्यूस हो जाता है, वो करके साढ़े सट नहीं लगती बैक के ऊपर, ठीक है। इस तरह जो ट्रेन के डब्बे होंगे, ट्रेन दी बोगीज होंगे ने, वो जो देखा होगा फिल्मों इस तरह उन्हें बफर लगे होंगे, बोगी के विच बफर बने होंगे हैं। ਇਹਦਾ ਕੰਮ भी की है कि जो ट्रेन अचानक ब्रेक मारे तो यह बफर इतने लिक्विड भरिया होंगे इन्होंने, ठीक है। ये भी शॉकर सिस्टम वांगू ने, तो ये दब जाते हैं, हौली हौली दबते हैं, एकदम नहीं दबते, हौली हौली दबते हैं। तो ये की करते हैं, चेंज इन मोमेंटम का समा बढ़ा देंगे ने, जिहदे नाल जर्क का जिहड़ा इंपैक्ट है, ठीक है, वो घट जाता है, तो जो सवारियां बैठियां ने उन्होंने सट नहीं पाई। इस तरीके जो भी कोई भज रहा होंगे, तुम देखोगे जो एथलीट भज के रेस खत्म करके हटता है तो वह काफ़ी समय भजता रहता है, वो इक्को दम नहीं रुकता। जे इक्को दम रुक जाता की होगा, पहला वो भज रहा है, वह मोमेंटम है, चलती हुई चीज़ का मोमेंटम होगा, जो वो अचानक रुक जूगा तो मोमेंटम इक्को दम की हो जाऊगा जीरो, तो वो बॉडी के उपर बहुत ज़्यादा फोर्स लगूगी चेंज, क्योंकि मोमेंटम ये मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। पहला बहुत ज़्यादा मोमेंटम है, इकोदम की हो गया जीरो, कि मैं एकदम ही रुक गया बहुत घट समय, तो समय ने कितना है बटे चाल है, बहुत घट समय, तो फोर्स की लगूगी बॉडी के उपर बहुत ज़्यादा, तो जो हड्डियां ने वो टुट सकदियां ने लत्तां दी, ठीक है। इसलिए उन्होंने एडवाइस की जाती है कि वह हौली हौली रुके, ना कि एकदम रुके। तो इस नाल साडा जिहड़ा अज दा टॉपिक है वो सारा पूरा हो गया। ਹੁਣ ਇਹਦੀ PDF मैं भेज दी, तो तुसीं इहनूं चंगी तरह देखो, वीडियो में बार बार देखो जेकर समझ नहीं आ रहा, ठीक है। जे नहीं फिर मैनूं तुसीं पुछ सकते हो, नाल दी नाल वीडियो देखी चलो, नाल दी नाल काम करी चलो, डिले नहीं करना हैगा भी आप कल नूं कर लांगे, चलो बाद देखो वीडियो कर चली है बाद देख लांगे, इस तरह नहीं करना, डेली दी डेली अपना काम जिहड़ा पूरा करी जाना तुसीं। थैंक यू।